AGI पहले कौन बनाएगा? ओपन AI, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, क्योंकि देयर इज़ अ वॉर, मतलब AI रेवोल्यूशन डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर के ऊपर सॉल्व कर सॉल्व कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को। अभी इंडिया में ऐसी कौन कौन सी AI की कंपनीज हैं जो इस पर काम कर रही हैं और इसका मार्केट क्या है? Entrepreneurship is all about resilience and persistence. Yeah. If you do not have the right set of motives to be a part of an entrepreneur or to become an entrepreneur, then you will end up losing some very crucial years of yours, and because you do not have the right motive for it. हेलो हाय, आई एम अविराज, यू आर वॉचिंग राइजिंग भारत। अभी जब हम बात करते हैं AI के बारे में, तो AI जस्ट नॉट ऑल अबाउट ChatGPT, उसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। सो अभी हमारे साथ सौरभ हैं verysmart.ai से। सौरभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you. बताइए कि आप करते क्या हैं और किस तरह से वेरी स्मार्ट लोगों की ज़िंदगियां बदल रहा है, या किस तरह से AI में रेवोल्यूशन ला रहा है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है? So, what we are solving as a problem is at the data infrastructure layer. So, as an infrastructure layer, we are helping to have discovery of audience without going with a cookie-based model, and making this entire world a more privacy compliant. Okay. So, we are creating a consent management layer for the common people, for where they can manage their consent across all the touch point or digital touch point, I would say, and they can control it through one particular application itself. ओके, सो थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। मतलब अभी तक जैसे जो कुकी मॉडल पर जो डेटा जिस तरीके से मतलब किया जाता था, तो उस मॉडल को आपने वेरी स्मार्ट ने उसको ख़त्म करके, और So I won't say we have finished the cookie depreciation part of Okay. it, because larger organizations have been trying out how they can kill the third party cookies, or they can depreciate the third party cookies. What we have said is that, or what we have created is an alternative model of doing this, where user consent become a key matrix of managing their digital footprint across the internet. ओके, लाइक कि इफ़ देर इज़ B2B बिजनेस एंड B2C बिजनेस, सो बिजनेस किस तरीके से अपने आप को AI के थ्रू लेवरेज कर सकते हैं? क्योंकि जब हम MSMEs की बात करते हैं, तो इंडिया में लगभग 29 to 30% जो इंडिया की GDP का हिस्सा है वो MSMEs से आता है, 40% जो एक्सपोर्ट्स हैं वो MSMEs से आता है। सो वो अपने आप को किस तरीके से लेवरेज कर सकते हैं AI के थ्रू? देखिए, आप AI को एक टूल की तरह समझिए, ओके, ठीक है? वो टूल बहुत मल्टीपर्पस तरीके से यूज़ हो सकता है। उस टूल का यूसेज किस पर्पस के लिए होगा, वो एज ए थॉट लीडर या एज ए बिजनेस लीडर हमें डिफ़ाइन करना होता है, ठीक है? जैसे कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के CEO हैं, आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर एक्सपीरियंस इन्हांस हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन में बिटवीन मल्टीपल टच पॉइंट, बिटवीन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स there's a latency, there's no efficiency in that process, तो वो कैसे अचीव करी जाए? या फिर बहुत सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट कि आप अपना पर्टिकुलरली डेटा कैप्चर करना चाहते हैं और उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन, सो दैट यू कैन सर्व योर कस्टमर वेल। ये बहुत सारी डिफरेंट बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी बहुत हैं। और सो AI कैन बिकम योर टूल टू सॉल्व फॉर दीज पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। अब बात आती है MSMEs और SMEs की। सो पॉइंट इज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट challenges which most of the MSMEs or SMEs face is that how they can operate on scale. Yeah. Like आज के लिए इंडिया SMEs के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है that on the other side they have to compete with the larger MNCs itself, and which are more process driven or more process oriented itself. So SMEs कैसे AI tools यूज़ कर सकती है to kind of make their entire customer journey as well as business processes more automated and at par of that level that they can come and match the efficiency of a MNC organization itself. So because without fixing the existing process, without fixing your
best of the customer interest, you cannot scale for long time. Long time. You have to, if you want to scale, you have to fix your existing processes. वेरी गुड आंसर. एंड जब हम ब्लॉकचेन के बारे में बात करते हैं, सो जो वेरी स्मार्ट एआई है वो ब्लॉकचेन से, उसका मॉडल ब्लॉकचेन के कितने हद तक करीब है और किस तरीके से वो ऑपरेट करता है, एंड थोड़ा सा ब्लॉकचेन को सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करिए. देखिए, अगर सिंस हम यहाँ पे SMEs और माइक्रो SMEs के लिए बात कर रहे हैं, तो बहुत सिंपलेस्ट वे में मैं आपको समझाता हूँ. ब्लॉकचेन दो जगह बहुत ही अच्छा फिट है. ओके. एक, जहाँ पे आप डेटा ऑनरशिप, चाहे वो यूज़र आइडेंटिटी डेटा हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल कैप्चर्ड डेटा हो, आप डेटा ओनरशिप जहाँ पे डिसेंट्रलाइज रखना चाहते हैं, जहाँ पे एक सेंट्रल रिपॉजिटरी में आप उस ओनरशिप को डिफ़ाइन नहीं करना चाहते या कंट्रोल नहीं डिफ़ाइन करना चाहते, तो वहाँ पे ब्लॉकचेन का बहुत अच्छा यूज़ केस होता है. वन. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, जहाँ पर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं और उन मल्टीपल स्टेक होल्डर्स का अपना एक रोल है अराउंड solving a particular problem, or maybe stitching a customer journey, or talking about connected ecosystem. तो उन stakeholders को without one organization taking overall control on that particular ecosystem, how they can interact with each other, how their data can talk to each other without losing its control, or they can contribute together. That is where the blockchain fits in. These are the two major use cases. If you would go and talk about any set of enterprise blockchain and other things, there are these two major problem statement which get addressed when we talk about blockchain itself. जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे केस में ब्लॉकचेन का यूज़ केस ऐसे आता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के पास अपना रिस्पेक्टिव डेटा है. बिकॉज ऑफ द डेटा प्राइवेसी लॉ, दे कैन नॉट just go and pass on this data to someone else. Yeah. And because if they do, they are in infringement of the data privacy. So in this particular case, what we have created is like a bridges between all the different large organization, where they need not pass on the data, but they can actually democratize the entire intelligence of it in a decentralized manner, where there is no central admin, central control with one organization itself. तो उनके पास अपने अपने डेटा का कंट्रोल रहेगा, लेकिन वो आपस में एक दूसरे से डेटा के ऊपर बात कर सकते हैं विदाउट शेयरिंग और ट्रांसफरिंग. हाँ. सो इसको बहुत सिंपल वे में बोला जाए तो आप एक्सेस मैनेजमेंट कंट्रोल को आप डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं. ओके. अभी इंडिया में ऐसे कौन कौन सी एआई की कंपनीज हैं जो इस पर काम कर रही हैं और इसका मार्केट क्या है? सो आई एम नॉट श्योर. आपको ये समझना पड़ेगा, एआई, ब्लॉकचेन, मेटावर्स और एनी अदर टेक्नोलॉजी, दे आर जस्ट द इनेबलर्स. दे आर नॉट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट बाय देमसेल्फ, और दे आर नॉट डायरेक्टली सॉल्विंग अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट एज पर से. So in order to understand any business, you have to ensure that what kind of a problem they are solving. जैसे हम data infrastructure layer के ऊपर solve कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को. अभी अगर हम कहें कि ये हम AI फर्स्ट कंपनी हैं, हम ब्लॉकचेन फर्स्ट कंपनी हैं, तो नहीं. We are not a AI first, we are not a blockchain first kind of a company. हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी जिसमें हमें एक्सेस मैनेजमेंट ऑटोमेट करना था. सौरभ एक एंटरप्रेन्योर हैं. हाँ. जिन्होंने एक प्रॉब्लम फाइंड की मार्केट में. Yes. और उस प्रॉब्लम का इन्होंने सॉल्यूशन बनाया और उसमें हम AI और ब्लॉकचेन एज ए टूल यूज कर रहे हैं. यस. वेरी गुड. सो अब जो हमारा नेक्स्ट सवाल है, अभी इस कॉन्वर्सेशन को, इस इंटरव्यू को जितने भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स देख रहे हैं या जो भी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपना एआई के फील्ड में अपना स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सवाल है कि जैसे अभी कोई नया जो स्टार्टअप बनने वाला है या कोई अभी कॉलेज में जा रहा है, तो वो स्टूडेंट सोच रहा है कि एआई के स्पेस में स्टार्टअप वो बनाएगा. और ये जो दुनिया है एआई की, अभी तो ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ एआई का रेवोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, एआई ये कर देगा और एआई वो कर देगा. तो नया अगर एंटरप्रेन्योर है, वो सीखना चाहता है, समझना चाहता है, तो इंडिया में क्या स्पेस है कि जहाँ पर एक अभी यूनिकॉर्न एआई कंपनी बन सकती है और जो
नए बिजनेसेस आ रहे हैं, क्या उनके लिए मार्केट में अभी जगह है और क्या मार्केट इतना सेचुरेटेड हो गया है? थोड़ा सा इस पर बात करेंगे। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप AI फर्स्ट कंपनी बना रहे हो Yeah. तो AI फर्स्ट कंपनी आप बना रहे हो तो उसमें ऑलरेडी क्लटर्ड है स्पेस। मतलब आप AI एज ए सर्विस उसका SaaS मॉडल बना रहे हो, या फिर आप कोई पर्टिकुलर प्रोसेस ऑटोमेशन कर रहे हो जो कि अक्रॉस द वो है। सो व्हेन यू आर टॉकिंग AI एज ए सर्विस, Yeah. then there's a very cluttered space. Lot of large organizations, lot of smaller organizations, all are betting for the same customers. Okay, so मेरा मानना ये है कि आप अगर एज ए कॉलेज गोइंग एज ए यंग एंटरप्रेन्योर आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको ये सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजी. Entrepreneurship is about solving the problem in the best possible way where you can actually create a value or impact in general masses. So इस चीज़ को समझने के लिए आपको आप कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सी इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट्स. आप अपने घर से 5 किलोमीटर दूर चले जाए, अगर इफ़ यू आर गुड एट ऑब्जर्विंग पीपल, गुड एट हेयरिंग people, so you will understand that there are 10 different problem which is unattended, which is not getting solved even after when we talking about great technology advances in AI and blockchain itself. So बहुत सिंपल है, आप प्रॉब्लम को समझिए पहले, आप अपने कस्टमर से उस प्रॉब्लम को लेकर बात कीजिए, एक MVP बनाइए, एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाने के बाद आप उसको अपने कस्टमर के पास लेके जाइए, उनसे पूछिए, फीडबैक लीजिए, क्या वो इसके लिए आपको कभी पे करेंगे, क्या वो जिस तरीके से वो आपने प्रॉब्लम सॉल्व करी है क्या वो उनके लिए वैलिड है या नहीं है. वो फीडबैक लूप लेने के बाद कम अप, आइट्रेट, एंड मे बी यू इफ़ यू हैव टू डू इट 10,000 टाइम, डू इट 10,000 टाइम. But if you have to really find a product market fit, in this particular case you have to define a problem statement, how it is going to be addressed, what strategy, what approach you are taking to address that problem statement, and it should be very much acceptable to your customer that they can actually they can ride on it, pay for it, and similarly more. So your business economics should also work to actually make a sustainable business out of it. तो entrepreneurship is all about problem solving. अगर आप कोई भी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, लोग आपको उसके लिए पैसा देंगे, लोग आपको उसके लिए अप्रिशिएट करेंगे. बट सौरभ, आप मतलब 100% आपने सही बोला, आई एम एग्री. बट अभी जब मैं मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स देखता हूँ, एंटरप्रेन्योर्स देखता हूँ, तो मुझे अब कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग स्टार्टअप बनाने की वो जो एक फैशन ट्रेंड है उसके चक्कर में वो लोग या तो MVP भूल रहे हैं या तो प्रॉब्लम्स को भूल रहे हैं, और प्रोडक्ट मार्केट फिट किस तरीके से उनका हो रहा है. तो उसके वजह में जो इंडिया के 90% स्टार्टअप्स हैं वो इन्फेंट स्टेज में फेल हो जाते हैं, और इंडिया पूरे वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है. तो ऐसा ये शायद इसी वजह से हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये एक प्रोसेस है, अगर उसको नहीं फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. अगर जब आप कोई सॉल्यूशन मार्केट पे थोप रहे हैं, उस वो प्रॉब्लम है ही नहीं, तो एक ना एक दिन तो उसका ख़त्म होना है. सो अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और थोड़ा सा टाइम भी कम है, कि क्या सोचते हैं इसके बारे में? See, I really want it should be an Indian company. Definitely. But are we betting on it? Are we preparing for it? The answer is no. So we have to really put as an ecosystem, as an effort to march and work in that direction, so that whenever this new revolution is coming up in the technology space, where we are talking about infrastructure level development, India shall actually able to take a front foot in that direction. कौन बनाएगा ना, like it's too early to comment on that. बट उस डायरेक्शन में क्या लगता है कि कौन काम कर रहा है? और ये जब हम बात करते हैं AGI के बारे में, तो बहुत लाइक कि वो ऐसा नहीं है कि लोग सोचते हैं कि जो AGI होगा वो ह्यूमैनिटी के ऊपर ये कर देगा, क्योंकि उस बहुत सारे मिथ्स भी हैं ऐसे. सी पॉइंट क्या है कि
हर एक इकोसिस्टम में there will be always a good narration and there will always be a bad narration. You have to, as if you are a thought leader in that particular space, you have to be very much realistic. You have to pass on the real, kind of a real, I would say, real narration among the masses, so that they should not be afraid of it. Many people do it out of low know-how about that particular technology, or out of fear of unknown. That is something which is being there. So हर मार्केट में दोनों एग्जिस्ट करते हैं. इट्स ऑलवेज अ इंडिविजुअल चॉइस वेयर दे वांट टू स्टिक देयर बैटन्स ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग. थैंक यू सो मच सौरभ. और लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ही छोटा सा रखेंगे कि मतलब जैसे सैम ऑल्टमैन है जो कि मतलब जिनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है, अगर वो लोग आकर ऐसा बोलते हैं कि एआई किस तरीके से मतलब ह्यूमैनिटी को गिफ्ट है, या उनका मतलब उस चीज़ को लेकर उसको इतना बढ़ावा देते हैं, तो वहाँ पर क्योंकि जब सैम ऑल्टमैन जैसा बंदा आकर वो चीज़ें बोलता है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है. तो आपको क्या लगता है कि उसका लोगों के ऊपर इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा? क्योंकि जब हम एजीआई या एआई के बारे में बात कर सकते हैं तो शुरुआत में तो हमेशा ये सारी चीज़ें हमें लगती हैं कि हमें हेल्प करने के लिए बना गया, बट जब ये लोग मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टॉकिंग इन वेरी इन जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, लाइक ब्लॉकचेन और इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि जो मासेस है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है. तो वो आप थोड़ा सा अपने तरीके से एक्सप्लेन करिए कि कैसे. Obviously, when a industry leader talks about a good side or a bad side about a technology or what they are creating, okay, it passes on in both ways. If it is something, because people in India or in many of the part of the globe, they are highly influenced by the thought leaders. Yeah. And they tend not to get into the nitty-gritties of this entire thing itself. तो पॉइंट क्या है कि अगर आप ये देखें कि कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इंडिविजुअल इस वजह से किसी एक इकोसिस्टम का पार्ट बनना चाहता है क्योंकि वो ट्रेंडिंग में है और देयर आर मोर पैशनेट पीपल अराउंड दैट, देन आई वुड से प्लीज़ डू नॉट do it. Please do not get started because your friend is starting a new startup or something like this. If you believe in what you are going to create an impact, if you believe that you have understood the kind of a problem in a very detailed manner and you have a right solution for it, then only jump into an entrepreneurship and stick to it. Because Exactly. And thank you Saurabh, thank you for this conversation. sure. Okay. Thanks. So please watch, like, subscribe, share, and thank you so much.